who recently got his German student visa in just 7 working days. And now I am going to Germany for my master studies at TH Ingolstadt, German University. I would say there are many factors they are considering before giving the admission to the student. So Darshit, tell me something about the university TH Ingolstadt you are going in. And अगर आपने रिसर्च पेपर किया है, रिसर्च थीसिस किया है और वो आपका पब्लिश है, तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है और वो मतलब बेसिकली शो करता है कि स्टूडेंट का प्रैक्टिकल वर्क भी है, जो भी उसने स्टडी किया है, सिक्योर किया है अच्छे मार्क। क्या टिप्स बताएंगे हमारे स्टूडेंट को जो प्लान कर रहे हैं जर्मनी के लिए? जर्मन यूनिवर्सिटी को बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो और क्रिएटिव थिंकिंग भी कर सके एट द सेम टाइम। जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था आपको, तभी भी मैंने बताया था कि मैम मुझे इसमें लेना है एडमिशन, और लकीली आई हैव गॉट इन दैट। Hello everyone, this is me Amanpreet, co-founder from Amritpala Vision, and again I am with my student Mr. Darshit Panchal, who recently got his German student visa in just 7 working days. So yes, let us ask him why he chose Amritpala Vision and what all services he got from us and why he planned to go to Germany and whatever tips he's having for our present students and the future students. So hi, congratulations Darshit. Thank you ma'am for inviting me here. And yeah, I would love to share with all of the students who are aspiring to go to the Germany in future. And at Amritpala Vision, my experience was so smooth. And I would like to thank you, Aman ma'am, that providing me such good services. And the team was also really helpful. So Darshit, tell me something about your profile first of all. Okay, so I have completed my diploma in automobile engineering. Then I have pursued my bachelor's degree from LD College of Engineering in same field, automobile. And now I am going to Germany for my master studies at TH Ingolstadt in International Automotive Engineering course. That's great, that's great. So how was your timeline we have maintained? Okay, so at Amritpala Vision, I remember that I enrolled before, I guess, 1 year ago. And since then, we are continuously engaged. And first of all, we have applied for APS. Then all the timeline was well managed. And also, I received a good feedback from your side that what should I do, how to present my LOM, LOR, and what language should I have to focus on. So Darshit, आपको 3 public universities से admission आया है, right? And if I name them, one of them is TH Ingolstadt, your dream university where you wanted to go, right? The second one was TU Kaiserslautern and the third one was TU Chemnitz. So what do you think, what was the factor कि जिसमें हमारा 3 admissions आए हैं, according to you? Okay, so for German university, I would say there are many factors they are considering before giving the admission to the student. जिसमें से एक तो internships, projects, your work experience, which is post study, and LOR, LOM, and German language, which is really important. And अगर आपने रिसर्च पेपर किया है, रिसर्च थीसिस किया है और वो आपका पब्लिश है, तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज है और वो मतलब बेसिकली शो करता है कि स्टूडेंट का प्रैक्टिकल वर्क भी है, जो भी उसने स्टडी किया है, सिक्योर किया है अच्छे मार्क, वो प्रैक्टिकल भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। और जर्मन यूनिवर्सिटी को बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो और क्रिएटिव थिंकिंग भी कर सके एट द सेम टाइम। सो मेरे हिसाब से ये सारे फैक्टर हो सकते। पर अगेन मैं कहना चाहूँगा कि वो भी एक चीज़ है कि आपके पास बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए टू प्रेजेंट योर प्रोफाइल इवन बेटर वे। अगर आपके पास 9 CGPA भी है, फिर भी हो सकता है आपके मल्टीपल रिजेक्शन आ सकते हैं। करेक्ट। क्योंकि प्रोफाइल इन सच वे प्रेजेंट करना कि आपके पॉइंट्स हाईलाइट हो और वीकनेसेस छुप जाए, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
दैट्स ग्रेट. सो येस स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर CV, जिसके अंदर आप सारा कुछ लेआउट कर रहे हैं, योर प्रोजेक्ट्स, योर इंटर्नशिप्स, आपने कोई रिसर्च थीसिस की है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपकी बैचलर्स रिलेटेड है, वो सारी चीज़ों को हमें हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दर्शित, हाउ यू वर एंगेज्ड विद अस फ्रॉम लास्ट 1 year. So what all timeline we did in this 1 year? From starting, we have applied for APS. Then we are searching for universities and उसके लिए लगभग हमने 1-2 सेशन साथ में बैठे थे और शॉर्टलिस्ट किए थे किस यूनिवर्सिटी में जा सकते, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग. उसमें ही हमने अप्लाई किया था. और देन यूनिवर्सिटी एडमिट से लेके वीज़ा अराइवल तक मुझे बहुत अच्छी सर्विसेज मिली, मैं कहना चाहूँगा. और अभी जैसे कि मेरा फ़्लाइट्स भी है आफ्टर 1 week, तो उसके लिए भी मुझे बहुत सारे सजेशंस और वो सब मिल गए. तो या मैं कहना चाहूँगा कि थैंकफुल हूँ कि ऐसी सर्विस मिली और ऐसी टीम है मेरे पास जिनको मैं कभी भी कांटेक्ट कर सकता हूँ. एंड इवन समटाइम्स मैं रात को भी कॉल करता हूँ, फिर भी मैम पिक कर लेते और आंसर्स कर लेते. तो क्वेरीज भी सॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो ऑल ओवर सर्विस वॉज रियली गुड, आई वुड से. Okay, so you did your German language till which level? I have completed my B1. Okay, that's great. So what do you think, ये कितना हेल्पफुल हमें होने वाला है जर्मनी में? ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो उधर है जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, उसका एक ही रीज़न है क्योंकि उनके पास जर्मन लैंग्वेज है. Good. काफ़ी लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है जर्मनी में. वो एक ही फैक्टर है कि उनके पास जर्मन लैंग्वेज नहीं है क्योंकि वो उधर सोशलाइज नहीं कर सकते. उधर ग्रोसरी बाई करने से पहले भी बहुत सारा मतलब उनको गूगल लेंस वगैरह करना पड़ता है. और अगर लैंड हो जाए उसके बाद आपको कंट्री में रजिस्टर करना है विच इज़ आनमेल्डिंग, उसके लिए भी वो लोग प्रिफर करते कि आप जर्मन में बात करो. तो वो एक फैक्टर है, वो ज़्यादा मतलब क्रूशियल है. अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो कंसिडर करो कि अच्छा टाइम दो, 1 साल दो, कम से कम 8 महीने दो लैंग्वेज को, ताकि आप जान सको कल्चर को भी और लैंग्वेज को भी. राइट. सो आपने जो 1 year हमारे साथ पूरा इन्वेस्ट किया है, दैट इज़ विथ योर लैंग्वेज ऑल्सो, राइट? द लैंग्वेज पार्ट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. Yes. एंड हाउ वॉज योर B1, A1, A2, B1 कोचिंग विद अस? So I have completed my coaching with Neeraj ma'am. And the journey to learning language which is really good here. एंड मैंने काफ़ी लेक्चर्स ऑनलाइन भी अटेंड किए थे B1 के लिए, और उसमें मुझे लगा सेम सर्विस है बेसिकली. मैं इधर अहमदाबाद में रहता हूँ, फिर भी मैंने दोनों अटेंड किए. Right. और सर्विस दोनों की अच्छी है, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन की. और मैम बहुत अच्छी तरीके से टीच करते इन अ फन वे, तो आपको याद भी रहता है. और वोकेबलरी ऐसी चीज़ है जिस पे आपको टाइम देना पड़ेगा, पर हो जाएगा. पर मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसे क्लासेस जैसे कि अमृतपाल ऑफ विज़न आप चूज़ कर सकते हो, जहाँ आपको मटेरियल्स मिल सकता है अच्छा, और बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं. तो वो अच्छी चीज़ है कि आपको पहले से ही एक जगह पे सब हो जाता है लैंग्वेज का. दैट्स ग्रेट. सो क्या टिप्स बताएंगे हमारे स्टूडेंट को जो प्लान कर रहे हैं जर्मनी के लिए? जर्मनी के लिए मैं कहूँगा स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, और एक बार आप विज़िट करके देखो अमृतपाल ऑफ विज़न, क्योंकि इधर आपको बहुत कस्टमाइज सर्विस मिलती है आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग. मुझे याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था, मैम आपने ही सजेस्ट किया था कि प्रोफाइल में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं. Right. पोस्ट स्टडी किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं ताकि जो ड्रीम यूनिवर्सिटी हो उसको क्रैक कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ है, और लैंग्वेज पे फोकस करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एडमिट्स के लिए भी. और आपका एक्सपीरियंस जर्मनी जाने के बाद वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा अगर लैंग्वेज है तो. So Darshit, tell me something about the university TH Ingolstadt you are going in. ओके, तो TH Ingolstadt बेसिकली मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी था. जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिला था आपको, तभी भी मैंने बताया था कि मैम मुझे इसमें लेना है एडमिशन, और लकीली आई हैव गॉट इन दैट. तो वो एक चीज़ था. और ऑटोमोबाइल के लिए पर्टिकुलरली बहुत कम कॉलेजेस है. वैसे हम बोलते हैं कि जर्मनी इज़ ऑल अबाउट ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल, बट अगर इंग्लिश डॉट कोर्स में देखें तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है. इसमें से है एक TH Ingolstadt, और वो ऑडी का हब है. तो
दैट इज़ द थिंग विच फैसिनेट मी मोर, बिकॉज उधर इंटर्नशिप वगैरह का अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाता है, और देर आर ऑल्सो मैनी मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। सो यूनिवर्सिटी के लिए TH इंगोस्टार बहुत अच्छी पिक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप है, और ऑडी का भी हब है, तो वो एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। और अगर विद इन जर्मनी में देखें तो 2 और 3 ही ऐसे डेस्टिनेशन है ज़्यादा आपको ऑटोमोबाइल के लिए ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है। और TH इंगोस्टार्ट के बहुत पास वाला बड़ा शहर विच इज़ म्यूनिक, वो 70 to 80 किलोमीटर्स अवे, वो BMW का हब है, Right. तो वो भी स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिल सकता है उधर। That's great. So you have a lot of information before going to the university. Yes, of course. Right. So Darshit, when I suggested you कि हमें German language भी करना पड़ेगा, right? And उसने exactly आपने उसको follow किया वो चीज़ को, and you have successfully completed B1 level also. So क्या वो एडवाइस आपको लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने बहुत सही टाइम पे वो स्टार्ट किया? यस मैम, तो वो मैं कहना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छी एडवाइस मिली, क्योंकि मैं बहुत अर्ली आपको विज़िट कर लिया था, तो स्टार्टिंग से मेरे पास एक टाइमलाइन थी विच आई हैव टू फॉलो, एंड मेरा प्रोसेस भी साथ में हो रहा था, और मैंने लैंग्वेज भी स्टार्ट कर दी थी फर्स्टली, तो मेरा प्रोसेस और लैंग्वेज कह सकते हैं कि इक्वली समय पे ख़त्म हुआ, और मेरा B1 भी हो गया। तो B1 के बाद भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब कि हाँ, मतलब हम भी नेटिव के साथ बात कर सकते हैं, और उधर भी हम कल्चर में इमर्ज हो सकते हैं, विच इज़ रियली क्रूशियल थिंग। क्योंकि आप अगर कंट्री चेंज कर रहे हो तो आपको ये भी फैक्टर्स ध्यान में रखना पड़ता है, और वो लोग भी डिमांड करते हैं कि अब अगर आपको थोड़ा साल हो जाए, थोड़ा टाइम हो जाए, तो आपको भी लैंग्वेज आए, तो वो लोग भी मतलब अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। Right. So students, those who all are going in English taught program, we always suggest कि A1 A2 तो आना ही चाहिए, इंडिया से ही करके जाओ, और अगर ज़्यादा टाइम हमारे पास अवेलेबल है तो डेफिनेटली B1 भी होना चाहिए, बिकॉज यही एक चीज़ है जो अल्टीमेट आपको वहाँ पे जाके हेल्प करने वाली है। नो डाउट आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको इंग्लिश में स्टडीज़ करवा देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो डे टू डे रूटीन है, आप कौन सी सिटी में वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें आपको जर्मन लैंग्वेज एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। So it is always recommended to all the students who go to Germany कि A1 A2 B1 आप इंडिया से करके ही जाएं। So thank you Darshit for sharing this wonderful experience of yours, and if you're also planning to go to Germany and study in German public universities, you should definitely contact Amrit Palavision. Thank you.